Hello everyone, I am Tanya Singh. Welcome to Jiffy Learning. Many of my students have requested me to start with the topic Delhi Sultanate. Since the topic is quite large, so I have split the video into three parts. So this is the first video and it deals with rise of Islam and Arab invasion in India. Let's move forward. Richness is not having many belongings, but richness is contentment of the soul. हम अमीर बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद के नहीं होते हैं. अमीर इंसान तो वो है जिसकी आत्मा संतुष्ट हो. किसने बोला था ये बोला था प्रॉफेट मोहम्मद ने. Let's start the video by discussing the early beginnings of Islam. Prophet Muhammad is considered as the founder of Islam and he was born in 570 AD. He was orphaned at the age of 6. He was brought up by his uncle and grandfather. Since his uncle was a trader, so he used to travel with his uncle. While traveling, he came across with many of the tribes and he started disliking the traditions that the tribal people used to follow. And on the other hand, when he met the Jews and the Christians, he liked the concept and the belief in one God. So, the same was adopted by Prophet Muhammad in Islam. The concept of one God, the faith in one God, the belief in one God was adopted in Islam. Talking about the family and clan of Muhammad, so he was born in the Quraysh tribe और उनके फादर थे हजरत अब्दुल्ला जिनकी डेथ हो गई थी व्हेन जस्ट बिफोर प्रॉफेट मोहम्मद was born और उनकी मदर थी हजरत बीवी अमीना who passed away when prophet was 6 years old. और अमीना ने उनको नाम दिया था अहमद क्योंकि उनको एक बार एक ड्रीम आया था and an angel appeared in the dream and she suggested to keep the name Ahmad. And later on his grandfather Abdul Muttalib, he changed the name to Muhammad. So the name was changed from Ahmad to Muhammad. Now talking about the condition of India at the time of Arab invasion. Arab invasion के time पे India की condition कैसी थी? So when we talk about India politically, it was divided into various several rival states और rival इसलिए क्योंकि वो आपस में ही power और positions के लिए लड़ते रहते थे और ये जो उनके आपस की rivalry थी इसने एक रास्ता create किया. It gave a way to the foreigners to attack India और सबसे पहले foreign invasion हुआ था अरब्स का क्योंकि कोई यूनिटी नहीं थी, कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था इंडिया में जिसकी वजह से उनको लगा कि एक ऐसी कंट्री जहां पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट छोटे छोटे स्टेट हैं उसको कैप्चर करना बहुत इजी रहेगा. बट द वीकनेस ऑफ इंडिया वाज नॉट इट्स डिवीजन. उसके अलावा भी एक वीकनेस थी. वो ये था कि कांस्टेंट वीकनेस तो डिवीजन हो सकती है बट एट द सेम टाइम छोटे छोटे कंटिन्यूअस वार्स होते रहते थे छोटे छोटे किंगडम्स में. सो दैट also created a way for the foreigners to attack India. उनके लिए एक रास्ता बन गया और धीरे धीरे सारे foreigners इंडिया की तरफ मुड़ने लगे. Moving forward, let's summarize the causes for the invasion of Arab in India. तो इसको मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है. सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो इट्स द ट्रेड रिलेशन ऑफ इंडिया विद द अरेबिक कंट्रीज. अरब और इंडिया का पहले से ही बहुत अच्छा रिलेशन था रिगार्डिंग द ट्रेड और जैसे जैसे अरेबियन कंट्रीज की पावर इंक्रीज होती गई उनकी एम्बिशंस और उनकी डिजायर भी इंक्रीज होती गई और उनकी एम्बिशन और डिजायर क्या थी टू कैप्चर मोर एंड मोर टेरिटरीज एंड टू इंक्रीज द लैंड अलोंग विद द मिलिटेंट्स. तो सबसे पहला अटैक हुआ था 636 एडी में जो कि थाने में हुआ था. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें यह है कि जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि ऑल्दो वी वर हैविंग अ ट्रेड रिलेशन और ट्रेड रिलेशन के साथ साथ अरेबिक कंट्रीज को यह भी पता चला कि इंडिया में कितनी ज्यादा रिचनेस है कितनी ज्यादा वेल्थ है. तो ऑब्वियसली चीज है बहुत ज्यादा अमीरी बहुत ज्यादा वेल्थ देखकर जितने भी अरेबिक इन्वेडर्स थे वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगे. नाउ टॉकिंग अबाउट वन मोर कॉज और वो था रिलीजियस जील. They wanted to attack the countries, they wanted to capture more and more territories and to propagate Islam. Therefore, उन्होंने क्या किया विद जो वहां के खलीफाज होते थे उनका एक और एम होता था कि टेरिटरीज को कैप्चर करना एट द सेम टाइम जो टेरिटरीज कैप्चर हुई है वहां पे इस्लाम को प्रोपोगेट करना. तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ अटैक किया गया कहां पे? सिंध पे.
तो हमने 3 चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहला कॉज ये था उनका एम्बिशन और उनकी डिजायर। उनकी एम्बिशन थी कि हम ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को कैप्चर कर सकें। दूसरा था ट्रेड रिलेशन, और उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत ज्यादा वेल्थ है, तो उस वेल्थ और रिचनेस ने उनको अट्रैक्ट किया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉज की। तो नेक्स्ट कॉज में ये था कि दे वांटेड टू प्रोपोगेट द इस्लामिक कल्चर इन इंडिया। एंड एक इमीडिएट कॉज भी था जो कि उस वक्त अचानक हुआ था, वो ये था कि कुछ ऐसे शिप्स थी, अरेबियन शिप्स थी, जिनको सिंध के सी पायरेट्स ने अटैक किया था, जिसकी वजह से अरेबियंस बहुत ज्यादा बौखला गए थे और दे प्लान्ड एन अटैक ऑन सिंध। तो ये थे कॉजेज ऑफ सिंध इन्वेजन। Moving forward, now let's discuss the planning and plotting of the invasion. So this was not the first time that India was attacked by the Arabians. This was the third time. First attempt was made by Ubaidullah. He was defeated and killed. Second attempt was made by Budel. He was also defeated and killed. This was the third attempt. And the governor Al-Hajjaj, he reorganized his army. उसने अपनी आर्मी को और भी strong किया, and then he sent his son-in-law as the commander of the army. Who was the son-in-law? Muhammad bin Qasim. So Muhammad bin Qasim led the army, and this army moved forwards towards the Sindh. और वो मकराना होते हुए सिंध की तरफ बढ़ने लगे. On the way they captured Debal, and finally they attacked Sindh in 711 AD. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटल ऑफ रेवार। ये कैसे कैप्चर किया गया सिंध को? तो एक बैटल हुआ था जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ रेवार। ये लड़ा गया था मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में। दाहिर कौन थे? दाहिर थे द रूलर ऑफ सिंध। और मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे द कमांडर ऑफ द आर्मी विच वॉज सेंट बाय गवर्नर अल हजज। तो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में एक बैटल हुआ जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ रेवार। इसमें क्या हुआ था? इसमें दाहिर डिफीट हो गए थे और मुल्तान और सिंध को कैप्चर कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान की सारी वेल्थ को देखकर इतना मिसमराइज्ड हो गया, इतना स्टॉनिश्ड हो गया कि उसने मुल्तान का नाम क्या रखा? द सिटी ऑफ गोल्ड। उसने नाम रखा मुल्तान का द सिटी ऑफ गोल्ड बिकॉज इट वॉज हैविंग अबेंडेंट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं अंडर मोहम्मद बिन कासिम, सिंध एंड मुल्तान वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स जिसको इक्ताज का नाम दिया। और इक्ता को कंट्रोल कौन करता था? अरेबिक मिलिट्री ऑफिसर। इक्ता को कंट्रोल करने वाले थे मिलिट्री ऑफिसर जो कि अरेबिक हुआ करते थे। अगेन ये जो इक्ताज या डिस्ट्रिक्ट थे इनका सब डिवीजन किया गया छोटे छोटे लोकल हिंदू, और उसको हेड करने वाले कौन थे? लोकल हिंदू ऑफिसर। जो हिंदू ऑफिसर्स थे उनको दे दिया गया छोटा सब डिवीजन। किसका सब डिवीजन? जो एक मेजर डिवीजन हुआ था बड़े सिंध और मुल्तान का, जिसको हम इक्ताज बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट को सब डिवाइड करके दे दिया गया हिंदू ऑफिसर्स को। और फिर एक टैक्स इंपोज किया गया नॉन मुस्लिम पे। उस टैक्स का नाम क्या था? जिजिया। Now talking about the army of bin Qasim, उनके पास थे 25,000 troops, 6,000 camels, 6,000 Syrian horses, 3,000 Bactrian camels। अब ये Bactrian camels क्या है? इनकी जो होती है ये होती है 2 humps, इनको बोलते हैं Bactrian camels। उनके पास आर्टिलरी थी जिसके along with the force of 2,000 men, एडवांस गार्ड्स थे उनके पास, और 5 कैटापुल्ट्स थे। कैटापुल्ट्स एक तरह की गुलेल होती बड़ी वाली, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, हिस्टोरिकल मूवीज होती है उसमें बड़े बड़े तोप टाइप के लकड़ी के बने हुए आते हैं, उसको हम कैटापुल्ट्स बोलते हैं। बेसिकली गुलेल का आप बड़ा वाला फॉर्म समझ लीजिए। हम बात करते हैं अगर एंड ऑफ मोहम्मद बिन कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या हुआ था? अचानक से उनकी अनटाइमली डेथ क्यों हो गई थी? खलीफ वलिद वॉज सक्सीडेड बाय खलीफ सुलेमान। सुलेमान ने खलीफ वलिद को सक्सीड किया था जो कि उनके भाई थे। और ये खलीफ सुलेमान जो थे वो अल हजज के दुश्मन थे। और सिंस बीइंग द दुश्मन ऑफ और द एनिमी ऑफ अल हजज। और अल हजज कौन थे? अल हजज जो थे वो थे गवर्नर ऑफ इराक। एट द सेम टाइम हम ये भी पढ़ चुके हैं मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम अल हजज का सन इन लॉ था। अब क्योंकि अल हजज गवर्नर थे, मोहम्मद बिन कासिम उनका सन इन लॉ था, तो खलीफ कहीं ना कहीं खलीफ सुलेमान मोहम्मद बिन कासिम से कुछ वो हेट्रेड वाला रिलेशन उनके बीच में आया, जिस वजह से क्या हुआ, उन्होंने ऑर्डर किया
कि मोहम्मद बिन कासिम को मेसोपोटामिया भेज दिया जाए प्रिजनर की तरह, और जहां पे उनको बुरी तरह से टॉर्चर करके मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया गया। For more than 150 years, Sindh and Multan continued to remain as the part of Khalif। और उसके बाद 150 सालों तक वहां पे किसका रूल रहा? खलीफ्स का। हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ अरब कॉन्क्वेस्ट के, कि अरेबियंस तो आ गए इंडिया में, पर उसका इफेक्ट क्या हुआ पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस द ग्लोब। अगर हम उसको समराइज करें तो आफ्टर द सब्जुगेशन ऑफ सिंध इट मेड अ वे फॉर इस्लाम टू एंटर इन इंडिया। जैसे जैसे हमारा जो सिंध था वो अरेबिक पीपल के कंट्रोल में आया, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इट मेड अ वे फॉर द इस्लाम टू एंटर इन इंडिया। And as a result, the art, administration, astronomy, music, painting, medicine, architecture were learned by the Arabians। वो हमारे आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सारी चीजों को सीख कर जाते थे, and they started spreading it across the globe। और क्योंकि हमने देखा था अरब दे एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियंस। इंडियंस और यूरोपियंस के बीच में उनको कनेक्ट करने का काम किया था अरेबियंस ने। तो ये यहाँ से हमारा कल्चर, आर्किटेक्चर, सारी चीजें, एस्ट्रोनॉमी वगैरह सीख कर जाते थे, एंड द सेम दे यूज टू प्रीच टू द यूरोपियंस। तो यूरोपियंस भी कहीं ना कहीं से इंडिया के बारे में जानने लगे थे, और उनकी उत्सुकता, दे स्टार्टेड बीइंग क्यूरियस टू नो व्हाट इज इंडिया, वेयर इज इंडिया, इंडिया में क्या है, इतनी वेल्थ कहाँ से आई। सो आफ्टर द कमिंग ऑफ इस्लाम एक और कंट्री थी, जो एक और ग्रुप था जो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और वो थे यूरोपियंस। अगर हम बात करते हैं, सारी चीजें इतनी परफेक्ट थी, तो व्हाट वाज द रीजन फॉर द फेलियर और व्हाट वाज द कॉजेस फॉर द फेलियर ऑफ द अरब्स, तो इसको भी मैंने 4 पॉइंट में समराइज कर दिया है। Discussing the first point, the first and the foremost cause of the failure of Arabs to proceed more after their conquest of Sindh was the premature death। सबसे पहला कॉज अगर हम देखें कि अरेबिक फेल क्यों हुए, बिकॉज मोहम्मद बिन काजिम की अनटाइमली डेथ हुई थी। और सेकेंड कॉज अगर हम डिस्कस करते हैं तो एक लॉन्ग बिटर बिटर क्वारल चल रहा था खिलाफत का। वो किसके बीच में था? उमैय्यद्स और अब्बासिड्स के बीच में। अब उससे क्या हुआ, along in bitter quarrel for the khilafat between the Umayyads and the Abbasids put the Arabs into a state of confusion। अब ये खुद ही कंफ्यूज हो गए कि पार किसके हाथ में आने चाहिए, उमैय्यद्स या अब्बासिड्स। तो इसकी वजह से जब वो खुद ही ऑर्गेनाइज नहीं थे, धीरे धीरे उनका जो कंट्रोल था सिंध पे वो छूटता चला गया। एंड टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट, विद द पैसेज ऑफ द टाइम द रिलीजियस एंथुजियाज्म, एक जो जील था कि हाँ हमें ये रिलीजन प्रोपोगेट करना है, वो कहीं ना कहीं दबने लगा, सप्रेस होने लगा। क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज जहां ज्यादा होती हैं वहां पे रिलीजियस एक्टिविटीज सप्रेस होती जाती हैं। Talking about the fourth point, the Arab domination came to an end with the rise of the Turk। ये आता है हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक। जैसे जैसे अरब का डोमिनेशन खत्म होता गया, वहां से एक दूसरा ग्रुप राइज होने लगा, वो थे द टर्क्स। और धीरे धीरे टर्क ने क्या किया, द टर्क आफ्टर embracing Islam had become powerful, they had made the Arab supremacy down and degraded। उन्होंने धीरे धीरे अरब्स को डिग्रेड करना शुरू किया और खुद को अपग्रेड करना शुरू किया। और इसी की वजह से नेक्स्ट हमारी कंट्री में इन्वेड करने वाले कौन थे? टर्क्स। और हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी यही होगा, द टर्किश इन्वेजन। So this was my video on rise of Islam and Arab invasion in India. My next video deals with the Turkish invasion. So hit the bell icon so that you don't miss any of the recent updates। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।